Praise God for this wonderful opportunity to come into His presence. परमेश्वर को स्तुति हो कि उन्होंने हमें ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आने पाए। How many of you are glad that you are in the presence of God? कितने लोग खुश हैं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं? I am so glad to see you all after a gap of couple of weeks. मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ 2 हफ्तों के बाद में। As some of you know that I've been away in Chhattisgarh for a couple of weeks. और आप में से काफ़ी लोग जानते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ गया था कुछ समय के लिए। And I've been seeing intense battle. और मैं बहुत ही भयानक युद्ध को देख रहा था। The sort of battle that I've very rarely seen. ऐसा युद्ध जो मैं बहुत ही मुश्किल से मैंने कभी देखा होगा कभी। The day I reached there, और जिस दिन मैं वहाँ पे पहुँचा, heavy rain started and I was not able to go out, meet with people. और बहुत तेज बारिश थी, मैं बाहर नहीं जा पाया, मैं लोगों से नहीं मिल पाया। And I was very sick the next day. और अगले दिन मैं बहुत ही बीमार था। And I was to preach on the Sunday, and I didn't know how I will be able to do that. और एक रविवार को मैंने प्रचार भी किया और मुझे नहीं पता था कि मैं वो कैसे करने वाला हूँ। And even those people whom I had to meet, they were, I was not able to meet them. There was obstacles after obstacles. और मैं जिन लोगों से मिलना चाहता था उनसे मैं मिल नहीं पा रहा था और एक के बाद कठिनाई परेशानियां आ रही थी। At one point of time, I felt like I just need to run away from that place. और एक ऐसा समय आया कि मुझे लगने लगा कि मैं बस यहाँ इस जगह से भाग जाऊं। And I text Tina, I'll be leaving. Let me go from here. Whatever God wants to do, He has already done. So just let me, I'm going. और मैंने टीना को मैसेज किया और बोला कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जो भी परमेश्वर करना चाहता था उसने कर लिया है, अब बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। Thank God for Tina, who stood with me and said, no, you have to be there. God is going to do a great work. You have to hold on. And she started praying, and many others, many of God's people prayed for me. और मैं टीना का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने टीना को मुझे दिया और उन्होंने ये बोला कि तुम वहीं पे रुको, तुमको वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, टीना ने मेरे लिए प्रार्थना किया। Sunday, we saw mighty presence of the Lord come down. I've never experienced such great power coming down. और रविवार के दिन हमने परमेश्वर की उस गाढ़ी उपस्थिति को देखा और कभी भी मैंने इतना भयानक परमेश्वर के कार्य को होते हुए नहीं देखा था वहाँ पे। Close to 100 people from 3 different villages had come together. और लगभग 100 लोगों के करीब अलग-अलग 3 गांव से लोग वहाँ पर आए। And God enabled me to preach for more than 2 hours almost. और परमेश्वर ने मुझे 2 घंटे से ज़्यादा समय में प्रचार करने का मौका दिया। It's not about me preaching. I'm telling this because I was shivering. I was not able to stand for even a second, and God made me stand there and deliver His word. और मैं 1 सेकंड के लिए भी ऐसे खड़े नहीं हो पा रहा था, मैं कांप रहा था, परंतु परमेश्वर ने मेरे को वो सामर्थ्य दिया और वहाँ पे इतने देर तक के खड़े रहने की समय सामर्थ्य दिया। Lives being delivered, people restoring back to God. Such a wonderful sight to see how God was restoring His people. और बहुत जीवनों को आज़ादी मिली और बहुत से लोग परमेश्वर की ओर वापस फिरे और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि मैं लोगों के जीवन में ये कार्य होते हुए मैंने देखा। One thing that I was able to see was that the enemy is trying to destabilize his church very strongly. और एक चीज़ मैंने देखा कि शत्रु जो कलीसिया है उसको दोबारा से तोड़ने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है। And mainly leaders, he's trying to topple the life of leaders of the church. और विशेष करके जो अगुवे लोग हैं कलीसिया के, उनके ऊपर वो हमला कर रही है। Many of the villages in India, we are finding this situation. और भारत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इसी परिस्थिति में अभी है। Couple of years, 20 years ago, when I've gone to one church, there were just 2 believers, 2 families that had to come to faith.
But now in that village, because the leadership has fallen, only 2 families are there now in the faith. तो 20 साल पहले जब मैं एक कलीसिया पे गया था, वहाँ पे मैंने देखा था कि दो विश्वासी लोग थे और वहाँ पे 2 परिवार के विश्वासी लोग थे। और अब जब मैं वहाँ पे गया तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि केवल 2 विश्वासी लोग बचे हैं उस कलीसिया में। See, where the leaders are firm in the word, the believers are also able to move in him. अगर अगुवे वचन में स्थिर है तो उनके साथ में उनकी कलीसिया भी स्थिर होती है। See, why I wanted to tell this is that we as a church stand for discipling nations. और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमें कलीसिया होने के नाते एक साथ हमें खड़ा होना है इस पूरे संसार को चरवाही करने के लिए, चेला बनाने के लिए। And so this is something that we have to, not just for us in this, inside the walls, but we have to take it out to see that the church is established in the word. और ये केवल इस 4 दीवारी की बात नहीं हो रही है, परंतु ये हमारा कर्तव्य है कि हम बाहर भी देखें कि कलीसिया परमेश्वर के वचन पे स्थिर है कि नहीं। God is, in all these ups and downs, God is building his church. That is tremendously, we are seeing that. इन सारी ऊंच और नीच में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है और परमेश्वर अभी भी अपने कार्य को कर रहा है। Yes, but we need to stand in the gap, pray for the people who are going through these difficult times, and at the same time enrich the church to stand firm for him. और हमें उस गैप में खड़े होना है और उस कलीसिया और उसके वचन के साथ में हमें स्थिर खड़े रहना है। Praise God for what he is doing in our midst and for what the way he is building us as a church. और परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर हमारे बीच में किन कार्यों को कर रहा है और किस तरीके से वो हमारे कलीसिया को बढ़ा रहा है। As mentioned, we have been going through this series in the book of Ephesians. और जैसे मैंने बताया कि इफिसियों की पत्री से हम लोग एक श्रृंखला में जा रहे हैं, focusing on in Christ. और हम मसीह में को हम फोकस कर रहे हैं। Today we'll be looking into the chapter 3 of Ephesians. और आज हम इफिसियों उसका 3रा अध्याय देखेंगे। As you know, the title of my message is The Fellowship of the Mystery in Christ. और इस प्रचार का जो टाइटल है वो ये है, मसीह में रहस्य की संगति। Let's look to the Lord in prayer. आइए हम परमेश्वर को प्रार्थना में देखें। Heavenly Father, we acknowledge your presence among us and in our study of God's word. परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति को यहाँ पे मांगते हैं पिता, और हमारे बीच में We recognize that you're the one who illuminates the scriptures, giving us spiritual insight and understanding. और हम जानते हैं परमेश्वर कि आप ही उस वचन को हमारे अंदर बढ़ाते हैं और हमको उसके चलने में सहायता करते हैं। According to your promise in Ephesians, O Lord, we ask that you would give us the spirit of wisdom and revelation. उस वायदे के अनुसार पिता, आप हमें उस बुद्धि की आत्मा और रहस्य की आत्मा को दीजिए परमेश्वर, so that we may know you better. कि हम आपको गहराई से जानने पाएं। May the eyes of our heart be enlightened to grasp the hope to which you have called us. हमारे हृदय की आंखें आपकी ओर देखने पाए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। That we will, the riches that you have given us of the glorious inheritance in you. और जो महिमा और जो विरासत आपने हमें दिया है उसे हम देखने पाएं। The incredible power that is in work through us, O Lord. और जो महान सामर्थ आपने हमें दिया है प्रभु। Lord, enable us this day as we look to you, Lord Jesus. परमेश्वर, आज के दिन प्रभु हमें सामर्थ दीजिए जब हम आपको देखते हैं। Empower us to apply the word into our lives, O Lord. हमें सामर्थ दीजिए कि हम उस वचन को अपने जीवन पे लागू करने पाए। Keep us near to you, Lord. आपके करीब हमें रखिए परमेश्वर। Give us the intimacy that we desire from you, O Lord. आपके साथ में घनिष्ठता हमें दीजिए परमेश्वर, And equip us for your purposes, O Lord. और आपकी योजना के लिए हमें बनाए रखें। We pray this in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। We had been looking
how Paul is specifically mentioning about our position in Christ. और हम देख रहे थे कि किस तरीके से प्रेरित पौलुस हमारी जो स्थान है उसको बता रहा है कि हम मसीह में किस स्थान पे हैं। You might remember how I mentioned that Paul's letters, the first part is always about the teaching. और आपको याद हो सकता है कि पौलुस की जो पत्री है उसमें हमेशा वो पहले भाग में कुछ सिखाता है, And the second part will be the application of the teaching. और उसका जो दूसरा भाग होता है वो उसका एप्लीकेशन होता है कि हम इसे कैसे अपने जीवन पे लागू करें। In Ephesians, he is mentioning specifically about our position in Christ. और इफिसियों की पत्री में वो विशेष रीति से बता रहा है कि हमारा परमेश्वर में क्या स्थान है। And chapter 4 onwards, we see how we are to conduct our life in relation to that. और अध्याय 4 से वो बताता है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को मसीह में बिताएं। Let me mention this again. In chapter 1, we looked at the spiritual blessings that we have in Christ Jesus. और मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि पहले अध्याय में हमने देखा जो आत्मिक आशीषें हमारे जीवन में है, The wealth of the incredible things that are ours in Christ Jesus. और जो विरासत हमारी है यीशु मसीह में। We also looked at the inheritance that we have. और हमने उस विरासत को देखा जो हमारे पास में है। God gave us Christ as the gift to the church. परमेश्वर ने मसीह को दिया इस कलीसिया को एक उपहार के रूप में। So we are also looking at we looked at the reconciliation that we have in Christ Jesus. और हमने ये भी देखा मेल मिलाप जो मसीह यीशु में हमारे पास है। Last week we looked at how Christ brought down the wall of hostility that was between the Jews and the Gentiles. पिछली बार हमने देखा कि किस प्रकार से मसीह ने उस शत्रुता की दीवार को तोड़ दिया जो कि यहूदी लोग और अन्य जाति लोगों के बीच में थी। He made us one. और उन्होंने हमें एक बना दिया। We also talked about three things that brought about this in the act of reconciliation. और हमने उन तीन चीजों को देखा इस मेल मिलाप के क्रिया में। First of all, unity. और पहला चीज था वो एकता। Christ breaks the barriers, creating one humanity. और मसीह ने उस बैरियर को तोड़ दिया और एक ही मनुष्य को हमको साथ में जोड़ दिया। And then the process of reconciliation where both factions are brought near by the blood of Christ. और उस मेल मिलाप की क्रिया में उसने उन सबको परमेश्वर के लहू के द्वारा जोड़ दिया साथ में। Thirdly, the mission of bringing peace and togetherness. और तीसरा चीज हमने देखा वो मिशन जो कि ये था कि शांति को साथ में लेकर के आना। So, looking at this perspective, we are coming to chapter 3. और इस नजरिया के द्वारा हम अध्याय 3 पर आते हैं। So here we see the mystery revealed. और इसमें हम ये देखते हैं कि वो रहस्य को बताया जा रहा है। What it is and how it was revealed to humanity. और वो क्या था और किस तरीके से मनुष्य जाति को ये बताया जा रहा है। If we divide this chapter, we can divide it exactly into 3 different portions. और अगर हम इस अध्याय को बांटेंगे तो वो 3 अलग-अलग भागों में वो बटेगा। And we'll look into how Paul is presenting this mystery to the church. और हम लोग ये देखेंगे कि पौलुस किस तरीके से इस रहस्य को कलीसिया को बता रहा है। Let's read chapter 3 verse 1 to 5. आइए हम पढ़ेंगे अध्याय 3 उसका 1 से 5 तक के। इसी प्रकार मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। So this we see Paul is writing here mentioning this
that he is a prisoner of Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित बताता है कि वो परमेश्वर का बंदी है। Actually, we see that Paul is in Roman imprisonment at this point of time. और तो हम इसमें ये देखते हैं कि जो पौलुस जो था वो इस समय रोमी साम्राज्य के अंदर वो जेल पर बंद था। He was not actually in a jail-like situation, but he was in house arrest. और वो ऐसे जेल वाले तरीके के परिस्थिति में नहीं था, परंतु वो एक घर के अंदर कैद किया गया था। He was free to move inside the house, but you can see during night time, mostly there were two soldiers chained to him. They were chained to him. वो And he was- अपने घर पे घूम फिर सकता था, और परंतु रात के समय पे उसके घर के बाहर दो सैनिक लोग वहां पे रक्षा किया करते थे। They were chained to Paul. Paul was chained to two soldiers, one on his left and one on the right. तो रात के समय में पौलुस के दोनों तरफ सैनिक होते थे जो चेन के साथ में उसे बांध कर रखते थे। And it's interesting to see that no two soldiers came back again, because only once these set of और soldiers were to guard Paul. They would come only once. तो जितने भी हम देखते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम देखते हैं कि जो दो सैनिक लोग थे, वो जो कोई भी वो सैनिक दोबारा से कभी नहीं आते थे पौल के साथ में बांधने के लिए। So we see that, and they were the high level soldiers of the household of Caesar. और ये लोग जो थे वो कैसर के समय के उच्च श्रेणी के सैनिक हुआ करते थे। And we see that there's a tradition says that Paul preached, you know, the life of Paul. Paul did not utilized that opportunity to share the gospel to these soldiers who are with him. They will be there for a couple of hours with him, and he would share the gospel with them. तो हम ट्रेडिशनली देखते हैं कि वहाँ पे हम जानते हैं कि पौलुस क्या करता था, 2 घंटे भी अगर उसे मिलते थे तो वो जो सैनिक थे उनको वो परमेश्वर का वचन सुनाने लगता था। So he knew that they would not come back to him, so he made use of that opportunity to share the gospel with them. तो वो उस समय का उपयोग करता था क्योंकि उसे पता था कि ये लोग दोबारा नहीं आने वाले हैं, तब वो परमेश्वर के वचन को इनको सुनाया करता था। So we see here Paul, even though he is a prisoner of the Roman Empire, he's calling himself as a prisoner of Christ. तो हम जानते हैं कि पौलुस जब रोमियो साम्राज्य में बंदी था, फिर भी वो अपने आप को यीशु मसीह का बंदी बता रहा है। So he, as a prisoner of Christ, he's presenting this mystery to them. और एक यीशु मसीह का बंदी होने के नाते वो इस रहस्य को उन्हें बता रहा है। And how did he receive this mystery? और कैसे उसने इस रहस्य को प्राप्त किया? Verse 3 tells that is the mystery made known to me by revelation. और जो तीसरा वचन वो बताता है कि भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है। He received it by revelation. और उसने एक प्रकाशन के द्वारा प्राप्त किया है। This is not something that Paul had made up sitting there. He had nothing to do. Okay, so I'll try to write something and he made up. No, that's not the thing. और ये ऐसा नहीं है कि वो खाली बैठा हुआ है तो उसने इसको कहानी को बनाया है, परंतु इस तरीके का कुछ भी बात नहीं है। God gave the revelation to Paul and he's delivering it to the people. और परमेश्वर ने ये प्रकाशन पौलुस को दिया और वही रहस्य वो लोगों को बता रहा है। And he's just a messenger of the truth that is entrusted to him. और वो केवल संदेश वाहक है जो संदेश उसे मिला है उस संदेश का। So we see Paul in prison or in house arrest, kept there, who was moving all around preaching the gospel, but in this place now he is kept there, not going anywhere, but revealing this mystery that God has given to him. तो हम पौलुस को यहाँ पे देखते हैं, जब वो घर पे अरेस्ट उसे किया गया है, तो वहाँ पे वो कहीं नहीं जा रहा है, परंतु वहाँ पे इस रहस्य को वो बता रहा है लोगों को।
From verse 6 to 9, we see the mystery is being described. और वचन 6 से 9 में हम देखते हैं कि उस रहस्य को बताया जा रहा है। What is this mystery? और ये रहस्य क्या है? Excuse me. In English, the word mystery, the meaning is like this: something that is dark, obscure, secret or puzzling. और इंग्लिश में जो ये शब्द है मिस्ट्री, इसका मतलब हम देखते हैं जो कि बताता है जो अंधेरे में है और जो छुपा हुआ है, गुप्त में है और जो कि अनसुलझा हुआ है। So, what is mysterious is inexplicable, even incomprehensible. और ये रहस्य क्या है? वो रहस्य ऐसा है जिसे हम समझा नहीं सकते और वो हमारी क्षमता में समझने से बाहर है। But when we look at the Greek word mysterion that is used, it's quite different from the English understanding. तो उसका जो यूनानी भाषा में जो शब्द है मिस्टीरियन, उसका एक अलग अर्थ है। Although it is still a secret, it is no longer closely guarded, but it's open. तो ये अभी भी हम देखते हैं कि जैसे कि It's still a secret, it's no longer closely guarded, but it is open. और ये अभी भी रहस्य है और उसे अच्छे से छुपाया नहीं गया है और उसे खोल दिया गया है। See, the difference is, like when we say it's a mystery, it's completely not known, but in this context we know that what it is brought to light is that this was something that was not known earlier, but it has been now revealed to us. तो रहस्य जो है जो सब हर किसी से छुपा हुआ है, परंतु इस जगह पे हम देखते हैं तो वो ये बताता है कि उस रहस्य को पहले कभी नहीं जाना गया था, परंतु अब वो हमारे लिए खुल गया है। This is now revealed to the church, revealed to us by the revelation of God. और अब ये रहस्य कलीसिया को हमें परमेश्वर के प्रकाशन के द्वारा हमारे लिए खोल दिया गया है। So until that point of time, it was completely, nobody knew what was going to happen. और उस समय तक ये पूरी रीति से छुपा हुआ था और कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। So we see the nature of union of the Jews and the Gentiles into this new body. That is what is being mentioned. If we can read that verse from 6 onwards. और 6वें वचन से जब हम देखेंगे तो वो बताता है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साक्षी और एक देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे Can someone read in Hindi? उस सुसमाचार का सेवक बना मुझ पर जो उस पवित्र लोगों से छोटे से भी छोटा है, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया गया। See, one of the things that we can notice from here is, एक चीज है जिस पर हम ध्यान दे सकते हैं, in the Old Testament, the salvation of the Gentiles in the Messiah is prophesied. कि पुराने नियम में हम देखते हैं कि उद्धार जो है It's the salvation of Gentiles in the Messiah is prophesied. तो जो मसीह का जो उद्धार था वो भविष्यवाणी के द्वारा था। The Gentiles will be saved through the Messiah was already prophesied. और जो अन्य जाति लोग थे वो मसीह के द्वारा बचाए जाएंगे, वो पहले से ही भविष्यवाणी उसके लिए हो चुकी थी। But the coming together of the Jews and Gentiles into the church is never spoken of.
और यहूदी और अन्य जाति जब साथ में आएंगे, ऐसा चीज कभी भी नहीं बोला गया। See, nobody until that time knew what was going to happen. What is the mystery that God has kept for his people? और उस समय तक कोई भी नहीं जानता था कि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए क्या चीजों को रखा है। See, the mystery was untraceable. It could not be traced until that time. और जो रहस्य था उसे नहीं जाना गया था तब तक कि किसी ने भी उसकी खोज भी नहीं किया था। It was hidden from ages past. All through ages, this was not known to anyone. और इतने पूरे समय से कभी भी उसको किसी को भी कोई भी इस बात को नहीं जान पाया था। And the third thing it was hidden in God who created all these things. और जो तीसरा चीज था वो छुपा हुआ था परमेश्वर ने, क्योंकि उसी ने इन सारी चीजों को बनाया था। When we look at the functioning of the church, as you see, when Gentiles started coming into the church, the Jews were not able to accept it. They had always this understanding that it is through the Jews, anybody has to become a Jew first to come to the church. और ये यहूदी लोगों के लिए समझ से परे था कि जब भी अन्य जाति लोग कलीसिया में आते थे तो वो उन्हें स्वीकारते नहीं थे, और ये उनके समझ से परे था। If a Gentile has to come to the church, he has to first become a Jew. और अगर उस अन्य जाति को कलीसिया में आना था तो सबसे पहले उसे यहूदी बनना पड़ता था। And see how God used Apostle Paul, who was a Pharisee, a staunch person, such a person God used to reveal this mystery and make sure that this great truth of bringing in Gentiles and Jews together into one body is expressed to the world. और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने पौलुस, जो एक फरीसी हुआ करता था और वचन को जानता था, उसके सामने परमेश्वर ने उस रहस्य को बताया कि अन्य जाति और यहूदियों को साथ में एक शरीर के रूप में लेकर के आना है। Time and again Paul mentions this, that he became a servant of this gospel by the gift of God's grace. और समय के साथ में वो बता रहा है कि जब वो परमेश्वर का चेला बन गया तब वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इन बातों को जान पा रहा है। He considered him the least of the least because he was persecuting the church. वो अपने आप को सबसे छोटा मानता है क्योंकि वो लोगों के कलीसिया को सताया करता था। And God decided to give this mystery, reveal this mystery through Paul, who was the least of least, to make known what God has in plan for his people. और परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि इस रहस्य को वो पौलुस, जो अपने आप को सबसे नीचा बताता है, उसके द्वारा अपने लोगों को वो बताए। The church, as we know now, is unified across ethnic lines. There's no Jew, no Gentile, no rich, no poor, no difference at all. तो आज के समय जब हम कलीसिया को देखते हैं तो वो सारी कल्चर सारे मिले जुले हैं, जिसमें कोई भी यहूदी नहीं है, कोई भी अन्य जाति नहीं है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, सब एक है परमेश्वर में। But God decided that this will be revealed to at the proper time. God will reveal that to his people. तो परमेश्वर ने अपने लोगों को ये बातें बताने के लिए एक समय नियोजित किया था और उस समय पे उसने अपने इन रहस्यों को बताया। Let's look at verse 10. और हम वचन 10 को देखते हैं। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। See, just read slowly through that portion. इसे हम और धीरे से पढ़ेंगे। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। This is something mind blowing. और ये हमारे मन को
See, God, as He reveals the mystery of the gospel, He's using the church. It is through the church that God wants to reveal His manifold wisdom to the rulers and authorities in heavenly realms. तो वो जो रहस्य है वो प्रधानों और अधिकारियों पर परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों पर प्रकट किया है. Want to bring if you look at history, just one angel was enough to defeat the whole army of the Arameans. तो हम जब पुराने समय को देखते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि एक The army of Aram. अरामियों की जो सेना थी उसको तोड़ने के लिए हराने के लिए उसको हराने के लिए एक स्वर्गदूत ही काफी था. So the one single angel is powerful enough to destroy a whole big army. और केवल वो एक स्वर्गदूत जो था वो पूरे सेना को हराने के लिए काफी था. Such powerful power each angel has. और एक स्वर्गदूत के पास में इतना ज्यादा सामर्थ्य है. But God has kept this mystery of the gospel hidden even to the angels, but revealed it to human beings, such people as us. He has revealed it to us. तो परमेश्वर ने उस सुसमाचार का जो रहस्य था वो स्वर्गदूतों से भी छुपा करके रखा, परंतु उसने हम जैसे लोगों को उस रहस्य को बताया है. Let me make it a little more clear. मैं और इसे आसान बनाता हूं समझने में. See, God did not choose one of the angels to bring forth the gospel to the world. और परमेश्वर ने उनमें से कोई एक स्वर्गदूत को नहीं चुना कि सुसमाचार वो हमारे तक लेकर के आए. None of the angels knew what God is planning, the fulfillment of the gospel through Jesus Christ. None of them knew it beforehand. और कोई भी स्वर्गदूत ये नहीं जानता था कि उस सुसमाचार को और वो मसीह के द्वारा ये पूरा होने वाला है. But God in His perfect time, He revealed it through the church. Each of us made in the image of Christ, it is through us that God wants to display His manifold wisdom to the heavenly beings. और परमेश्वर अपने नियोजित समय पर हमारे कलीसिया के जैसे हर एक लोगों को उसने एक अपने समय पर इन बातों को बताया. Let me take you to this point that don't think our position in Christ is simple. और आप ये ना सोचे कि आपका स्थान मसीह में बहुत सरल है. He has given us so much of privileges. और ये सामान्य नहीं है और उसने हमें बहुत सारी प्रिविलेजेस को दिया है. That it is through us God is revealing His mysteries, His wisdom to the heavenly beings. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे द्वारा उस रहस्य को और उन बातों को स्वर्गीय लोगों से ज्यादा हमें दिया है कि हम लोगों को बता पाएं. So it is not just about our salvation. और ये केवल हमारे उद्धार के बारे में नहीं है. It is also about all the fullness of Christ being made known, or the fullness in Christ, as we see in Ephesians chapter 1 verse 10. You can read that. और ये परमेश्वर की भरपूरी से भरा हुआ है. और अगर हम इफिसियों उसका पहला अध्याय का 10वां वचन देखेंगे तो वो बताता है 9 and 10. 9वां और 10वां वो बताता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे. See, through Christ, God is desiring everything
to bring to the fullness. और मसीह के द्वारा परमेश्वर उन सारी चीजों को पूरा कर रहा है जो उसने कभी योजना बनाई थी। And through the creation, through his created being, man, God is bringing humanity to that fullness. और जो परमेश्वर ने लोगों को जो बनाया है, मनुष्य को, उनके द्वारा वो और अपने कार्य को पूरा कर रहा है। So God's fullness in Christ is made perfect through the church, his body. और परमेश्वर की जो भरपूरी है मसीह में, वो इस कलीसिया को पूरा हो रहा है। God is fulfilling all of it through each one of us. और परमेश्वर इन चीजों को पूरा हम में से हर एक के द्वारा कर रहा है। So as we have seen, God is making everything, Christ is the head of the church. और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे द्वारा सारी चीजों को पूरा कर रहा है, और जो मसीह है वो कलीसिया का जो सिर है। And the body, the church, is the fulfillment of everything that God has for his people. और जो शरीर जो है वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई थी, वो पूरा होते हुए। And as we the people of his God, of God, और हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, as we submit to him, और जैसे हम उन्हें अपने आप को समर्पित करते हैं, God uses us to reveal his mysteries, the marvelous things to the world. तो परमेश्वर अपने रहस्यों को हमें प्रकाशित करता है और अपने कार्यों को पूरे संसार को बताने के लिए हमें उपयोग में लाता है। So when we look at this portion, we see that the response of Paul to all what he has understood about the mystery of Christ through these things. और इस भाग में जब हम देखते हैं तो पौलुस जो कुछ भी समझा है, जो मसीह का जो रहस्य है, उस बारे में वो बताता है। Let's look at verse 14 onwards, 14 to 19. 14वें वचन से 19वें वचन तक के देखते हैं। Yeah, 3. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम से जड़ पकड़कर और नींव डालकर उस पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। See, after revealing this mystery that the Jews and Gentiles are one in Christ, और इस रहस्य को बताने के बाद में जो कि था यहूदी लोग और अन्य जाति मसीह में एक ही हैं, the fullness of Christ being revealed to the body of Christ, the church, और परमेश्वर की वो सारी भरपूरी और परिपूर्णता उस परमेश्वर के उस शरीर को दिखाया गया जो कि कलीसिया है, बताया गया। Paul encourages, before we come to this, let's verse 13, it says, I ask you therefore not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. और जो 13वां वचन है उसे हम पहले देखते हैं कि इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझ में हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। See, even when Paul was going through all these struggles and persecution, he was encouraging the people to not be discouraged, because the suffering that he was going through was actually the glory of the church. और हम देखते हैं कि पौलुस जो था बहुत सारे क्लेश से होकर के जा रहा था, और उस कलेश में के बीच में भी वो कलीसिया को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो आगे हार ना माने। See, when we look at the different epistles that Paul has wrote, there are 4 epistles that were specifically written while he was in prison or
in confinement. और पौलुस के द्वारा जितनी भी पत्रियों को हम देखते हैं तो उनमें से जो और भी 4 पत्रियां हैं उनको हम देखते हैं कि वो जब बंदी गृह में था तब उसने इन पत्रियों को लिखा है। I think probably if Paul was not in confinement, he would have been going around preaching to different places, probably, but this is under the will of God, so this would have definitely reached us. We would not have had those epistles which Paul wrote. तो अगर हम देखते हैं कि अगर पौलुस उस बंदी गृह में नहीं होता तो हो सकता है वो बाहर अलग अलग स्थानों पे जाता और परमेश्वर के वचन को सुनाता, जो कि हम बोल रहे हैं कि ये पत्रियां तो लिखी गई हैं, वो होना ही था, परमेश्वर की योजना में थी। और अगर बंदी गृह में नहीं होता तो ये जो पत्रियां हैं, ये जो वचन है, वो हमारे तक नहीं पहुंचता। And the other thing is that there were many from the household of Caesar who accepted the Lord. और दूसरी बात यह है कि कैसर के समय के उसके घराने के काफी लोग थे जिन्होंने परमेश्वर को अपनाया है। And he's encouraging the believers that don't be discouraged seeing that you are put in prison. I'm in prison. I'm not able to move freely around as I should have been, but it is for your glory. और वो विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा है, वो बता रहा है कि बंदी गृह में मैं भी हूँ और आप लोग भी हो सकते थे, परंतु And it is for your glory that I'm suffering. और ये उसकी महिमा के लिए है जो वो इस चीजों को झेल रहा है। Because of all what God has done through his life, using him for the glory of the church, he has no other option. He's led to prayer. That is what we are seeing in the last part. और जिन भी परिस्थितियों से पौलुस होकर के जा रहा है, उस समय पे उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है वो प्रार्थना करने के अलावा। He is motivated to prayer. और वो प्रोत्साहित हो रहा है प्रार्थना करने के लिए। That is what we see. For this reason, I kneel before the Father, from whom his whole family in heaven and on earth derives its name. जो कि बताता है कि इसी कारण मैं पिता के सामने घुटना टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। See, the normal posture of prayer for a Hebrew person is standing with hands lifted up. और जो इब्रानी भाषा के जो लोग होते थे उनके लिए जो एक तरीका होता था प्रार्थना करने का, वो ये था घुटना टेकते हुए प्रार्थना करना। Now, they stand and pray. That's the posture that normally they used to do. Stand with hands lifted up. और वो इस तरीके से प्रार्थना करते थे, खड़े होकर के अपने हाथ उठा करके। But here we see he is kneeling down. और परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि वो घुटना टेक रहा है। There's no specific posture that the Bible tells that you have to pray kneeling or standing, but here it's more of a posture of humility that he cannot but kneel before this great God who has revealed this mystery to him. और ये ऐसा कोई भी पोस्चर नहीं है जो बाइबल बताती है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करना है, परंतु यहाँ पे पौलुस घुटने टेकते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, नम्र बताते हुए वो वहाँ पे घुटना टेक रहा है और उस परमेश्वर को से प्रार्थना कर रहा है जिसने उस रहस्य को उसे बताया है। So, couple of things about the prayer that Paul prays here. और 2 चीज हम यहाँ से देखेंगे जो पौलुस ने यहाँ पे जो प्रार्थना किया है उसमें से। There are, first of all, he prays that they will be strengthened with might through his spirit in the inner man. और पहला चीज वो ये इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि वो सामर्थ से भर जाए उस आत्मा के द्वारा और उसका भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ से पाकर बलवंत होते जाए। Second, he prays that Christ may dwell in their hearts through faith. और दूसरा चीज वो प्रार्थना करता है कि विश्वास के द्वारा मसीह उसके हृदय में बसे। Thirdly, he prays they being rooted and grounded in love.
और तीसरा चीज वो प्रार्थना करता है कि प्रेम में जड़ पकड़ें। Fourthly, he prays that they will be able to comprehend with all the saints. और वो चौथी बात ये प्रार्थना करता है कि वो जितने भी संत लोग हैं उनके साथ में संगति करने पाए। One thing to notice here, it is he's praying that they will be able to comprehend along with all the saints, not individually, as a collectively they will be able to know. और वो हम ये देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है कि केवल एक संतों के साथ में नहीं परंतु हर एक संतों के साथ में मिल करके वो रहने पाए। Know what? और वो क्या है? The width, length, and depth and height of God's love. और वो ये जानने पाए चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई परमेश्वर की प्रेम की। So when we look at God's love for us, और जब हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं हमारे लिए, it is wide, जो कि चौड़ा है। if you look at the love of Jesus, the width of it, you see how wide a river can be. और जब हम यीशु के प्रेम को देखते हैं तो वो इस समान है कि जितना लंबा वो एक नदी हो सकती है, Chauda. जितना चौड़ा वो नदी हो सकती है। It's so wide that it covers over all of my sins. और वो इतनी चौड़ी है कि वो मेरे सारे पापों को ढांप सकती है। It covers over every circumstance of my life, वो मेरे जीवन की सारी परिस्थितियों को ढांप देती है so that all things work together for good. कि सारी चीजें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करे। So for God so loved the world, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, that's so wide as the world. इतना चौड़ा प्रेम किया परमेश्वर से। So it can encompass and include everyone. कि वो इतना चौड़ा है कि वो सारी चीजों को उसमें हम डाल सकते हैं। Second, it mentioned about the love of God, love of Jesus is the length. और दूसरा चीज बताता है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो लंबाई है। When considering the length of God's love, when did the love of God start towards me? और जब परमेश्वर की लंबाई को हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि कब परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में शुरुआत हुई, How long will it continue? और कब तक के वो चलता रहेगा। In Jeremiah 31:3, God says, I have loved you with an everlasting love. और यिर्मयाह 31:3 में हम देखते हैं वो बताता है कि उसने मुझसे प्रेम किया एक बहुत ही महान प्रेम के द्वारा, अनंत प्रेम के द्वारा। So it's the length of God's love is from eternity to eternity. और परमेश्वर का जो प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की जो लंबाई है वो अनंत से अनंत काल तक की है। So it's so wide to encompass all of us, all of our circumstances. और वो इतनी लंबी है कि वो सारी चीजों को ढांपती है, सारे हमारी परिस्थितियों को ढांप देती है। And it is long enough from eternity to eternity. और वो इतनी लंबी है कि वो अनंत से अनंत काल तक की है। Thirdly, it mentions about the depth of his love. और तीसरी बात वो बताता है कि उसके प्रेम की ऊंचाई के बारे में। Philippians 2:7-8 tells us how deep the love of Jesus goes. और फिलिपियो 2 उसका 7 से 8 में दिखाता है कि यीशु मसीह का प्रेम क्या है, कितना ही गहरा है। He made himself of no reputation, taking the form of a servant. और उसने कोई भी इस बात को ध्यान नहीं दिया और वो एक सर्वेंट के रूप में एक कार्य को किया। And being found in the appearance of a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. और वो इतना ज्यादा नम्र हो गया जो क्रूस पर वो मरने के लिए भी तैयार था। See, the death on the cross is the lowest point you can come to. और जो क्रूस पर मृत्यु है वो इतनी गहरी बात है जो बहुत ही नीचे पर वो आई हुई बात है। That is the lowest point anyone can go to. और वो इतनी नीची बात है कि कोई भी इंसान उतने नीचे तक जाने वाली बात। Understand, that is the depth of the love of Jesus for you.
और यही वो गहराई है परमेश्वर की प्रेम की। So the depth of God's love is as deep as the death on the cross. और परमेश्वर की प्रेम की जो गहराई है वो उस क्रूस के परमेश्वर की मृत्यु की गहराई के समान है। Fourthly, we see the love of Jesus has height. और चौथे बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो ऊंचाई है। See, if you need to see the height of God's love, ask yourself, how high does it lift me? और अगर आपको जानना है परमेश्वर के प्रेम को तो आप ये पूछ सकते हैं कि कितना ऊंचा वो हमें उठाता है। It lifts me to heavenly places where I'm seated with Christ. वो मुझे उन स्वर्गीय स्थानों पर बिठाता है ताकि मैं उनके परमेश्वर के साथ में। He has raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. उसने हम सभी को साथ में उठाया है और उस स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है मसीह के साथ में। See the love of Jesus. और ये परमेश्वर के मसीह के प्रेम को हम देखते Can हैं we really comprehend the work of God, the love of God in our lives? कि उसका जो प्रेम है हम उसे कैसे समझ सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम और उसके कार्यों को हमारे जीवन में। God's love is wide enough to include every person. और परमेश्वर की जो प्रेम है वो इतना चौड़ा है कि वो हर किसी को घेर सकता है। God's love is long enough to last through all eternity. और परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनंत से अनंत काल तक के लिए लंबा है। God's love is deep enough to reach the worst sinner. और परमेश्वर की जो प्रेम है वो इतना गहरा है कि हमारे उस पापों तक भी पहुंच सकता है। God's love is high enough to take us to the highest of highest. तो परमेश्वर का प्रेम इतना ऊंचा है कि वो हमें उस ऊंचे स्थानों पर ले जा सकता है। My dear church, कि प्रिय कलीसिया, see, the position that God has taken us to जो स्थान जो परमेश्वर ने हमें दिया है is beyond our understanding. वो हमारी समझ से परे है। We were completely out in the lost. We were lost forever. और हम हमेशा के लिए खो गए थे, But He decided to choose us. परंतु उसने ये निर्णय लिया हमें चुनने का। He has not just adopted us, उसने केवल हमें गोद नहीं लिया, He has seated us along with Him. परंतु वो हमारे साथ में बैठा। He has given us all the privileges, all the blessings that comes along with it. उसने हमें अपनी उन सारी आशीषों को दिया जो उसके साथ में आती है। The inheritance that we have in Him. जो विरासत हमारे पास में है उसके द्वारा। We don't quite understand all of it when we look at it now. और अगर अभी जब हम देखते हैं तो हम उसे अभी सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे, But He has given it to us. परंतु उसने हमें वो दे चुका है। As we saw, He has given us Christ, Jesus, as the gift to the church. और हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने मसीह को एक उपहार के रूप में उस कलीसिया को दे चुका है। And the mystery of the church being united as the plan of God to bring the Jew and the Gentile together as the fulfillment of Christ, fulfillment of His plan to the world. और उस कलीसिया को उसने ये दे दिया है कि वो जो रहस्य जो तो पहले जो था कि यहूदी लोग और अन्य जाति लोग अलग थे, उनको उन्होंने साथ में ला करके उस कलीसिया को एक रूप में दिया है, उपहार के रूप में। This was, and through all of that, God is revealing His manifold wisdom to the heavenly beings. और इन सभी चीजों के द्वारा वो उन स्वर्गीय लोगों के बीच में अपने उस स्वर्गीय ज्ञान को बांट रहा है। The magnificent wisdom is revealed through you and me. और वो ऐसा ज्ञान, वो उस ज्ञान को, उस ज्ञान के रहस्य को हमें और आपको बताया है। God decided that you and me will be revealing His glory to
heavenly beings. और परमेश्वर ने ये चुना है कि आपको और हमें इस रहस्य को बताया जाए उन स्वर्गीय लोगों के सामने। As you walk in obedience to His word, this is all revealed through our lives. और अगर आप उसके वचन में आज्ञाकारिता से चल रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको प्रकाशित की गई है। My dear friends, do we understand the weight of our calling? और मेरे प्रिय दोस्तों, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं कि आपकी जो कॉलिंग है वो कितनी गहरी है? We are not simple people. और हम केवल सामान्य लोग नहीं हैं। Not because we were great people that we were called, और ऐसा नहीं है कि हम बहुत महान लोग थे जो हमें बुलाया गया है, but God in His mercy has called us. But now understand that our calling is great. और परमेश्वर ने अपनी दया में हमें बुलाया है, परंतु आप ये समझे कि आपकी जो बुलाहट है वो महान है। The position that we are placed is a position of responsibility. और जिस स्थान पे उसने हमें रखा है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ स्थान है। Even the angels are looking down on you to see how God's glory is revealed to these meek people. और स्वर्गदूत लोग भी हमें देखते हैं ऊपर से कि वो जो परमेश्वर ने हमें कार्य को करने दिया है और वो जो रहस्य हमें बताया गया है उस गिरे हुए लोगों के रूप में। God could have used one of these angels to share the gospel, tell that, okay, I'm going to save all of you. और परमेश्वर कोई भी स्वर्गदूत को चुन सकता था कि उसके सुसमाचार को वहाँ करके लोगों को बता दे। Even redeeming all the creation back to Him. और जितने भी उसने रचना की है उनके द्वारा भी। But He decided that it will be through the church. परंतु उसने ये निर्णय लिया कि ये चर्च के द्वारा, कलीसिया के द्वारा वो बताया जाए। And as Christ is established as the head of the church, all of this is worked out. और जो मसीह है, जो इस कलीसिया का जो सिर है, उसके द्वारा ये बातों को बताया गया। We are so privileged. और हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं। But along with that comes this responsibility of fulfilling everything that God wants us to be. और हमारे पास में ये जिम्मेदारी भी आती है जो परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा करना। God is at work. और परमेश्वर कार्य को कर रहा है। And we have a responsibility to fulfill. हमारे पास में एक जिम्मेदारी है उसे पूरा करना है। Let me read this last verse for you. ये आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. 21. अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है और उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। What are we asking of the Lord? और हम परमेश्वर से क्या मांग रहे हैं? Anything that it's not about, this verse is many times quoted wrongly to ask, if you ask and imagine whatever you, beyond that God will give. No, it is about the mysteries, about the fulfillment of the greatness of God. You don't know what to ask, but God is the one who fulfills in it, in and through the church. And He is able to do all of this through each one of us. और ये जो वचन को हम गलत तरीके से भी कभी लेते हैं कि जो परमेश्वर आपके समझ से परे चीज़ों का आपके जीवन में करता है, परंतु ये वचन हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर उन रहस्यों को, हमारे समझ से परे वाली रहस्यों को और अपनी महिमा को हमें बता रहा है उस मसीह के द्वारा, इस कलीसिया को, आपको और हमको। God has given us this authority. और परमेश्वर ने हमें ये अथॉरिटी दिया है। And we are to walk in it. और हमें उस पर कार्य करना है। And in the next sessions we'll be looking at how, based on our position in Christ, how are we to live our life.
और आगे की श्रृंखला में हम देखेंगे कि कैसा हमारा परमेश्वर ने हमें उसमें स्थिर रखा है और किस तरीके से हमें अपने जीवन को जीना है। Let's understand our position and walk in the fullness of it. और आइए हम अपने स्थानों को समझें और उसके अनुसार हम चले मसीह में। May God bless us through these words. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा।